the topic. Today's learning objectives are the features of the wound of entry and exit. That is how to estimate the distance of fire by examining the entry and exit wound, and the postmortem findings in case of examine a case of firearm injury. How will you label it as a firearm injury? What are its characteristic features for postmortem examination? So the identification first is the identification of the injury, that the case is of a firearm gunshot wound. So how will you identify it? First is the firearm injury is usually a perforating as a lacerating wound. We in my last lecture, I hope you understand what is the meaning of a perforation and what is the meaning of a laceration. So a bullet, when it enters the body, it firstly it creates a perforation, that is cavity in the body, and then there is a lacerated wound. Lacerated, you can I hope you remember the characteristic feature that the edges are and the margins are irregular, and it's a dirty wound. The identification of an injury as a firearm injury is based on definitely there is a track of an entry as well as there should be an exit wound. That's why you label it as a gunshot wound. Characteristic features should be present, which will discuss further. The history of the eyewitnesses means the people who are present, they are witness that this is a case of a gunshot, and the circumstantial evidence. Circumstantial evidence means the presence of the body of victim, presence of a wound, shells of the bullet, presence of a weapon, and the history. Now, what are the questions that are inquired about the injury? Is it a firearm injury or not? Is it a firearm injury? Which is what is the nature of the firearm? If it's a firearm injury, then you should know the ammunition. Ammunition means either it's a rifle firearm, handgun, or a Kalashnikov, or a pistol, or a shotgun. Means having a cartridge, having pellets in it. How many firearms have been used? Either it's a case of single user or use of need to be sorted. How many shots have been fired? The what means they should be noted. The characteristic features for a firearm injury is what is the shape of the exit wound, what is the shape of entry according to the distance, the use of the missile. शॉटगन में एंट्री वूंड कैसा होता है, फायरआर्म में एंट्री वूंड कैसा होता है, रियंस होती है, तो डायरेक्शन मीन्स किस एंगल से बुलेट बॉडी में एंटर हुई है, एग्जिट हुई है, बॉडी में उसने अपना ट्रैक कैसे बनाया है, एंट्री के टाइम के टाइम उसकी डेविएशन को उसकी वूंड को देख के पता चलता है. अच्छा, जब हम फायरआर्म इंजरी को एग्जामिन करते हैं तो कुछ फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बात की है, जो कि साइमल्टेनियसली फर्दर हम जो पढ़ेंगे उसमें यही फीचर्स हमें मिलती हैं. अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस हमें ये फीचर्स मिलती हैं. तो सबसे पहले होती है टैटूइंग. एज द नेम सजेस्ट, टैटू वो आपको पार्शली बर्न और अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं. ये बॉडी में जाके जहाँ फायर होती है, एंट्री वुंड होती है, वहां पे जाके ये इम्बेड हो जाते हैं. इम्बेड के बाद ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस प्रोड्यूस करते हैं, और जिस तरह के पिक्चर में नजर आ रहा है, इमेज में नजर आ रहा है कि स्मॉल एम्बेडेड पार्टिकल हैं, इसकी वजह से ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस अराउंड द एंट्री वुंड है. तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं टैटूइंग. टैटूइंग ऑफ द पार्शली बर्न और अनबर्न पाउडर होता है. और इसकी ये का पेयर होता है जो कि वेपन जो है वो उसका डिस्टेंस कांटेक्ट पे कांटेक्ट वुंड हो, यानी कि गन की जो इंप्रेशन हो वो बॉडी के थोड़ा करीब ही हो. अच्छा, ये एंटीमॉर्टम फिनोमेना है क्योंकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा है गन पाउडर की वजह से, इस वजह से एंटीमॉर्टम फिनोमेना है.
पोस्टमार्टम की बॉडी में डेवलप नहीं होता, इवन अगर कोई फैब्रिक बन जाए। इट इज ऑफ न्यूमरस रेडिश ब्राउन पंक्टेड एब्रेजन्स। ये जो गन पाउडर रेजिड्यूज होते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, ये एब्रेजन्स प्रोड्यूस करते हैं। द ग्रेटर, जितनी रेंज ज्यादा होगी उतना ये होगा, ये अराउंड द एंट्रेंस रूट, इसकी डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। यानी कि जितना रेंज इंक्रीज होगा गन जो टैटूइंग अपेयरेंस ऑफ टैटूइंग है, उतनी डेंसर होके ये बिल्कुल एग्जिट कर जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। मार्क्स यूजली हील, अगर जो विक्टिम है अगर वो सरवाइव कर जाता है आफ्टर द वुंड ऑफ एंट्री, ये कुछ टाइम के बाद ये रिमूव हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। और ये होते कहाँ पर नहीं, सुपरफिशियल लेयर में होते हैं, एपिडर्मिस पे। टैटूइंग के बाद है ब्लैकनिंग। ब्लैकनिंग होता क्यों है, नाम सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि जब प्रीवियस लेक्चर में या स्टडी के जब कोई बैरल से बुलेट एग्जिट करती है तो अपने साथ कोई ना कोई फिनोमेना होता है मजल एंड के ऊपर। जब आपने पिक्चर देखी होगी होता क्या है, मजल एंड में आप फ्लेम प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, स्मोक प्रोड्यूस होती है, बिकॉज ऑफ द जो बैरल में प्रेशर हो रहा होता है गन पाउडर की बर्न की वजह से। तो वो सब चीजें जो है वो जब एग्जिट करती हैं, और अगर वो वेपन बॉडी के बिल्कुल क्लोज हो, अभी हम क्लोज की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक तो टैटूइंग उसी का एक फिनोमेना है, और दूसरा ब्लैकनिंग होता है जो फ्लेम इफेक्ट होता है, जो सूट है, यानी कि कार्बोनेशियस पार्टिकल्स जो गन पाउडर के बर्न होने की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, वो एंट्री वूंड पे आपको नजर आते हैं। जैसा ये पिक्चर में नजर आ रहा है, सराउंडिंग एंट्री वूंड पे आपको ब्लैकनिंग है। इसको या तो सूट भी कहते हैं, स्मोक भी कहते हैं, स्पॉइलिंग भी कहते हैं, और स्मजिंग भी कहते हैं। डेपोजिशन ऑफ, एज वी हैव डिस्कस्ड, कार्बन प्रोड्यूस, जो गन पाउडर की कंबस्शन से कार्बन प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से ये ब्लैकनिंग इफेक्ट होता है। एज द रेंज इंक्रीजेस द साइज, अगेन द सेम थ्योरी, जितनी रेंज जो है वो करीब होगी, कांटेक्ट में होगी, उतनी ही ब्लैकनिंग जो उसका इफेक्ट होगा। जितनी रेंज फायर आर्म की इंक्रीज होती रहेगी, ब्लैकनिंग जो होगी वो डिसअपेयर हो जाती है। और दूसरी चीज ये है कि इवन आफ्टर फायर मून के बाद ये प्लीज इजिली वाइप ऑफ हो जाता है, इसलिए क्योंकि डिपोजिशन है कार्बोनेशियस पार्टिकल का, इस वजह से इजीली रिमूव हो जाएगा। अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि एंट्री वूंड में आपको नजर आती है वो है एब्रेजन कॉलर। अच्छा, ये सारी फीचर्स जो है एंट्री वूंड की बता रही है, ब्लैकनिंग है, कॉलर, ये आपको एंट्री वूंड में मिलते हैं। तो एब्रेजन कॉलर बुलेट बॉडी के अंदर एंटर होती है। अच्छा, जहां बॉडी की स्किन ऐसी हो कि जो स्ट्रेचेबल हो, फॉर एग्जाम्पल एब्डोमेन है, जो बुलेट आपको करती बॉडी के अंदर जाएगी, तो वो सराउंडिंग जहाँ एरिया को स्ट्रेच वहां पे एब्रेजन बनेगा। क्यों? क्योंकि बुलेट बेसिकली होती क्या है, हमने बीनो डेवलप होता है कि जो ब्लंट चीज जो कांटेक्ट में, तो बुलेट इज बेसिकली जो बुलेट हेड होता है, अगर हम हैंडगन की बात करें तो दैट इज इट इज अ ब्लंट एंड दैट वो एक एब्रेडेड कॉलर बनाती है। फ्लैटन रिम जिससे आप पिक्चर में नजर आ रहा है, दिस इज एब्रेजन कॉलर। एपिडर्मिस में सराउंडिंग ऑफ द एंट्रेंस वूंड बनाती है। द एब्रेजन रिंग कैन वेरी, अब इट डिपेंड्स अपॉन द आपने कैलिबर कौन सा किया। यू नो व्हाट इज द कैलिबर? कैलिबर बेसिकली जो गन बैरल, आपकी जो बैरल होता है उसका डायमीटर होता है, उसके हिसाब से बुलेट की जो होती है वो कैलिब्रेशन होती है अकॉर्डिंग टू द वेपन बैरल। तो कैलिब्रेशन के हिसाब से जो है वो बुलेट की कैलिब्रेशन होती है, उसके हिसाब से एब्रेजन कॉलर बनता है। जितनी बुलेट साइज ज्यादा होगी उतना जो है वो इंक्रीजिंग जो होगा वो एब्रेजन कॉलर बनेगा। अच्छा, इसमें एंगल होते हैं। अगर बुलेट किसी एंगल से बॉडी एंटर हो रही हो, फॉर एग्जांपल नजर आ रहा है राइट साइड वाली पिक्चर अगर देखें तो ये एंगल से बॉडी में एंटर हो रही है। अगर ये टेंजेंशियल इम्पैक्ट के साथ बॉडी में परपेंडिकुलर बॉडी में अगर एंट्री देती है, तो आप देख सकते हैं एब्रेजन कॉलर जो है वो एक कंसेंट्रिक अपीयरेंस दे रहा है, कंसेंट्रिक एब्रेजन कॉलर बन रहा होता है। इसी तरह जो लेफ्ट साइड के ऊपर है ये डायरेक्टली ओब्लिकली बॉडी में एंटर हो रही है, तो एब्रेजन कॉलर आप देख सकते हो कि ये सर्कुलर है। तो एब्रेजन कॉलर एक आपको क्या बता रहा होता है, डायरेक्शन ऑफ एंट्री ऑफ द बुलेट, तो किस एंगल से बॉडी में एंटर हो रही होती है। तो ये आपको एक डिस्टेंस के बारे में बताता है, और आपको ये भी बताता है कि जो शूट आउट हुआ है वो किस किस एंगल से बॉडी में एंटर हुई है, और थोड़ा बहुत आपको ट्रैक के बारे में बता सकता है बॉडी के बारे में। अच्छा, जो बॉडी में ओब्लिकली एंटर होता है ये इसेंट्रिक एब्रेजन होती है, इसेंट्रिक एब्रेजन कॉलर होता है। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि कंफ्यूजन, एब्रेजन कॉलर के साथ साथ कंफ्यूजन भी बनती हैं।
तो इसको हम कंट्यूजन कॉलर भी कहते हैं। फिर है ग्रीस या डर्ट कॉलर। अच्छा, जैसे अब हमने इसका नाम ग्रीस और डर्ट कॉलर क्यों रखा है? एज एज यू नो कि जब बैरल में बुलेट जब पास आउट कर रही होती है तो एक कंटिन्यूस फिनोमेना और होता है। हम वी हैव डिस्कस्ड के हीट प्रोड्यूस, जब गन पाउडर बर्न होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, स्मोक प्रोड्यूस होता है, फ्लेम प्रोड्यूस होता है। उसके साथ साथ हर बैरल, हर गन, हर वेपन की जो बैरल होता है उसके अंदर लुब्रिकेशन होती है फॉर इजी पैसेज ऑफ द बुलेट। तो यही लुब्रिकेशन जो होती है वो बुलेट के अराउंड जो है वो वो रब ऑफ होती है जैसे वो बैरल से गुजरती है। तो अ ब्लैक ग्रे कलर्ड रिंग इज सीन लाइनिंग द डिफेक्ट शार्पली आउटलाइन कॉज फ्रॉम अ रिमूवल ऑफ सब्सटेंस एज द बुलेट passes थ्रू द स्किन। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि एक तो ये जो रिंग आपको बनी हुई नजर आ रही है, दिस इज द अब्रेजन कॉलर। अब्रेजन कॉलर के अंदर जो है एक डार्किश रिंग जो बनती है ये इस साइड पे, ये इसको हम डिफेक्ट को कहते हैं ग्रीस या डर्ट कॉलर या बुलेट स्वाइप होती है। स्वाइप इसलिए क्योंकि वो जो ग्रीस अपने साथ लेके मूव कर रही है। इट कंसिस्ट ऑफ बुलेट लुब्रिकेशन लेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बुलेट। ऑब्वियसली जब बुलेट बैरल से गुजर रही होती है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, बुलेट के स्मॉल फ्रेगमेंट्स और बैरल के स्मॉल माइन्यूट लेड फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो भी जाके एम्बेड होते हैं, तो जिसकी वजह से ये ग्रीस कॉलर बनता है। Abrasion collar surrounds the red collar. This is the grease collar, and this is the abrasion collar. Proof of, and this is the positive proof of an entry wound. टैटूइंग ब्लैकनिंग जो है वो किसी डिस्टेंस पे आके डिसअपेयर हो जाती है, बट एब्रेजन कॉलर और डर्ट कॉलर जो है वो क्लोज में भी बनती है और जितने भी लॉन्ग रेंज होगी उसमें भी बनती है, तो ये एक एंट्री वूंड का एक पॉजिटिव साइन होता है। Recoil impression or muzzle impression. Now, if the contact is too tight, is a tight muzzle impression. देखो इस पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा होगा, ये दिस इज अ मजल इंप्रेशन जो वर्टिकल वी से आपको नजर आ रहा है, तो आपको ये नजर आ रहा है, यू कैन समहाउ आइडेंटिफाई दिस इज मे बी अ पिस्टल, क्योंकि पिस्टल पे जो मजल एंड पे ये इन्वर्टेड वी मार्जिन बने हुए होते हैं, तो दिस इज अ मजल इंप्रेशन। इसी तरह अगर क्लोज कॉन्टैक्ट मजल इंप्रेशन विद द स्किन होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब एक तो बैरल में प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा होता है और उसको उस प्रेशर को एग्जिट होने के लिए स्पेस नहीं मिल रही होती, क्योंकि क्लोज पे ही मजल एंड पे स्किन होती है, तो नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस होता है बैरल के अंदर। थोड़ी सी भी अगर स्पेस रह जाए तो वो जो स्मोक है या हीट है वो स्केप करती है साइडवेज से, और वो सराउंडिंग मार्जिन्स जो होते हैं मजल एंड के जो स्किन पे होते हैं वो उसके पर एब्रेशंस और कंट्यूजन्स प्रोड्यूस करती है, तो इसको हम कहते हैं मजल इंप्रेशन। फिर है बैक स्पैटर। क्योंकि नेगेटिव प्रेशर क्लोज कॉन्टैक्ट वुंड में जो नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो जब स्किन में जब करने के बजाय होता है कि वो नेगेटिव प्रेशर होता है, तो जितनी भी स्किन आपकी जो डिग्रीज होते हैं, हेयर फ्रेगमेंट्स हो गए के जो है वो इनर लाइनिंग बना देते हैं, तो स्टेन्स हो सकते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है इन केसेस, अगर आपको बुलेट मिल जाए, सॉरी गन मिल जाए। फिर है ब्लो बैक फिनोमेना। ब्लो बैक फिनोमेना का मतलब होता है कि क्रूशिएट स्टेलेट और रेगेड लेसरेशन स्पेशली देयर सिलिकॉन। अगर इसी तरह क्लोज कांटेक्ट मोड में अगर वो एरिया इन्वॉल्व हो कि जिसमें जो स्किन की जगह आपके पास हार्ड सरफेस हो, हार्ड सरफेस शिन हो, टेम्पल हो, स्कल हो, यानी बोनी प्रोमिनेंस हो, तो उसमें क्या होता है कि अगर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं तो वो आपको तो इलास्टिसिटी होती है स्किन में, लेकिन अगर हार्ड स्किन सरफेस आ रही हो तो उसमें उसको हॉट एयर को एक्सटेंड करने की इतनी जगह नहीं मिलती, और थिन लाइनिंग ऑफ, क्योंकि स्कैल्प में थिन लाइनिंग ऑफ स्किन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लो बैक फिनोमेना होता है, क्योंकि स्किन जो है वो बिल्कुल क्रैक होती है और उसके बाद फौरन ही जो है वो बोन एक्सपोज ऑफ होती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं अंडरलाइन। ओके, अब बात करते हैं कि एंट्री वूंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ firearm use, यानी कि shotgun, you know what is a shotgun? Shotgun is that kind of weapon which has a cylinder, simple smooth cylindrical bore,
It has a cartridge in the form of a pellets. Pellets, you know what it is, जो छर्रे होते हैं जिनको कहते हैं, वो दैट्स अ शॉर्ट गन. तो शॉर्ट गन एंट्री वून में आपके पास 4 रेंजेस मिलती हैं, और 4 रेंजेस में आपको देयर क्लोज रेंज जो कि अप टू 3 फीट होता है, मिड या नियर रेंज जो कि अप टू 7 फीट होता है, और लॉन्ग रेंज जो कि बियॉन्ड 7 फीट होता है. एज द पिक्चर सजेस्ट, में पिक्चर में अच्छी प्रेजेंटेशन है कि अगर यहाँ से फायर किया जाए, बी वाली पिक्चर को देखें, फायर किया जाए तो क्या होता है, जो शॉर्ट गन की फायरिंग होती है, जो बुलेट एग्जिट कार्टेज एग्जिट करती है मजल एंड से, तो क्योंकि उसमें पैलेट्स होते हैं, तो पैलेट्स कोनिकल फॉर्म में जो है एक्सपेंड होते हैं, यानी कि इनिशियली एक साथ क्लस्टर में होते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होते हैं. तो जितना लॉन्ग डिस्टेंस होता है उतने ही जो पैलेट्स होते हैं एक्सटेंशन जो उनको ज्यादा मिलती है. इनिशियली आपको एंट्री वून बहुत एक्सटेंसिव म्यूटिलेटिंग वून मिलता है, लेकिन आप लास्ट पिक्चर देखो, जैसे 6 नंबर की जो है, 6 पिक्चर है, उसमें आप देखो कि सिर्फ पैलेट्स सॉरी पैलेट्स जो है वो आपको नजर आ रहे हैं. सॉरी. उसमें मजल ऑफ द वेपन इज हेल्ड है, उसका स्मूथ बोर्ड होता है. इसमें वूंड ऑफ एंट्री आप देख सकते हैं, इज क्वाइट बिगर इन द साइज, क्योंकि जो इसकी एक, जैसे हमने बात की, जो एक साथ कार्ट्रिज की एग्जिट होती है, बुलेट की एग्जिट होती है, तो वो उसमें मल्टीपल जो बुलेट्स होती हैं, तो वो बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, तो इसलिए बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग टाइप जो होता है, वो बहुत ही म्यूटिलेटिंग टाइप वूंड होता है. अच्छा, अब इसमें अपेयरेंस जो होती है वो हेड पे कुछ अलग होती है और ट्रंक पे कुछ अलग होती है. अगर हेड पे कांटेक्ट वुंड हो, हेड पे अगर कांटेक्ट वुंड हो, तो इट्स वेरी डेविस्टेटिंग, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि म्यूटिलेटिंग हेड होता है, डिकैपिटेटिंग हेड होता है, बिल्कुल डिकैपिटेट हो जाता है, एक्सटेंसिव फीचर्स बिल्कुल अनरिकग्नाइजेबल होती हैं. इसी तरह अगर ट्रंक पे अगर होता है, तो ये बेसिकली ट्रंक का एंट्री वोन है, तो उसमें आप देख सकते हैं बिग लार्ज एंट्री वोन मिलता है. अब इस एंट्री वोन को जो हमने प्रीवियसली कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख स्टडी किए हैं, इसमें आप देख सकते हैं हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं. एक तो हमें सॉइलिंग मिल रही है. सॉइलिंग, वी नो व्हाट इज सॉइलिंग, दैट इज इट इज बर्निंग. बर्निंग, यू कैन सी ब्लैकनिंग हो रहा है. Edges of the wound is seared with blackened by hot gases and muzzle impression may be seen. अब muzzle impression जो है वो इसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही zoomed in picture है, तो इस वजह से ये जो slightly line नजर आ रही है और is loosened by recoil, बिल्कुल क्लोज में नहीं है, थोड़ा सा भी डिफरेंस है, तो गैसेस को एस्केप करने का मौका मिलता है, और जब ये एस्केप साइडवेज में एस्केप करती हैं, तो फिर आपको फिर टैटूइंग भी मिलता है, आपको ब्लैकनिंग भी मिलती है, आपको फ्रूट डेपोजिशन भी मिलती है. ये हम सारी फीचर्स जो होंगी वो क्लोथिंग के ऊपर मिलेंगे, यानी कि होगा वो चेरी रेड डिस्कलरेशन होगा.
Hello? Okay, sorry for the disturbance. जो हमने हम so we were at अगर wound track में जो है वो चेरी रेड डिस्कलरेशन इसलिए होती है क्योंकि गन पाउडर जब बर्न करता है तो उसमें सराउंडिंग जो कार्बन प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है बिकॉज बर्निंग ऑफ द गन पाउडर इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन एंड causes carboxy hemoglobin. That's why at the contact wound the color of the interest wound which was cherry red discoloration. अप टू 15 सेंटीमीटर आपको ये जो है इसका डिस्टेंस होता है जब तक आपको इसकी चेरी डिस्कलरेशन मिलती है. ओके, क्लोज रेंज इज अप टू 3 फीट, यानी कि 3 फीट तक अगर डिस्टेंस होगा तो फिर आपको जो है वो क्लोज रेंज डिस्टेंस होता है. इसमें वूंड शॉर्ट गन वूंड ऑफ द हेड it is as similar as the contact range wound was. It is as mutilating, in which pellets are still traveling in a single mass. The large gaping tears of the scalp are present. अगर scalp पे होगा तो large gaping होता है, tearing mutilating wound होता है. इसी तरह अगर trunk पे होगा तो इसकी appearance कुछ इस तरह की होती है, deep gaping wound होता है. Again depend upon the angle of firing the wound either circular, इसमें appearance देखें chest पे trunk पे इसकी appearance है because large gaping circular होता है या elliptical भी हो सकता है. And there is no separate hole up till 3 feet because the bullets are traveling in a single mass. Scorching of the skin, singeing of the hair, blackening and tattooing, which is less with smokeless gunpowder. As you know, gunpowder के आपको types पता है, black gunpowder होता है, smokeless gunpowder होता है. तो अगर smokeless में less blackening और tattooing होती है. ब्लैकिंग एंड टैटूइंग कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, अगर आपने वैसे एग्जामिन करना है तो क्लोथिंग और उसके ऊपर आपको इंफ्रारेड फोटोग्राफी से विजिबल हो जाते हैं अगर स्मोकलेस हो. नो बर्निंग बियॉन्ड 1 फीट जो है आपको बर्निंग जो है वो डिसअपियर, साइंस ऑफ बर्निंग कैरेक्टर्स फीचर बर्निंग डिसअपियर हो जाते हैं. 1 to 3 फीट पे सूट जो है वो डिसअपियरिंग हो जाती है. वूंड ट्रैक जो है वो आपको अगेन चेरी रेड डिस्कलरेशन नजर आएगी. और वेड्स जैसे आपको पता है कि जो कार्ट्रिज केस के अंदर एक प्लास्टिक सेपरेटर होता है जो कि गन शॉट और पैलेट्स को सेपरेट करता है, तो वो उसकी भी आपको वूंड के अंदर अपीयरेंस नजर आती है जो कि एक साइन होता है कि टाइप ऑफ एमिनेशन यूज, वो आपको एक्सप्लेन कर देता है. मिड रेंज जो होती है वो अप टू 7 फीट होता है. इसमें टैटूइंग डिसअपियर, जैसे 3 फीट बियॉन्ड 3 फीट टैटूइंग डिसअपियर हो जाती है. वुंड ऑफ एंट्री की साइज जो है वो डिक्रीज होने लगता है. अब आप देख सकते हैं एंट्री वो साइज डिक्रीज हो रहा है और सराउंडिंग पे आपको सेपरेट पैलेट्स नजर आ रहे हैं, यानी कि एक सिंगल वुंड है और उसके साथ आपको सेपरेट स्मॉल माइन्यूट पैलेट वुंड नजर आ रहे हैं. बियॉन्ड 3 to 4 फीट एज वी हैव डिस्कस बर्निंग भी नहीं होती है, टैटूइंग भी डिसअपियर हो जाती है. अब ये लॉन्ग रेंज है. लॉन्ग रेंज में जो है वो मोर देन 7 फीट का डिस्टेंस होता है. इसमें क्या होता है कि एक सिंगल जो वूंड होता है वो डिसअपेयर हो जाते हैं और स्मॉल माइन्यूट पैलेट वूंड होते हैं वो थ्रू आउट द बॉडी, अगर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो बॉडी में नजर आते हैं. चार्ज ऑफ शॉट प्रोग्रेसिवली स्प्रेड, स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं अराउंड द मेन वूंड विद फर्दर, जितना जैसे डिस्कस किया इंक्रीज करेंगे उतना जो होगा वो मेन वूंड का साइज सेंट्रल अपर्चर डिक्रीज हो जाता है. अच्छा होता ये है कि फिर आपको लॉन्ग रेंज में सिर्फ एक ही अपेयरेंस होती है, वो स्मॉल माइन्यूट पैलेट अपेयरेंस होती है. उसके अलावा सारी जो कैरेक्टरिस्टिक फायरआर्म वुंड की इंजरीज होती हैं वो एब्सेंट हो जाती हैं. एंड समटाइम्स अगर वेट होगा तो आपको वेट के अपेयरेंस होंगे, लेकिन क्योंकि वो इतनी कैरेक्टरिस्टिक शॉटगन एंट्री वुंड होता है कि आपको पैलेट से यू कैन रिकॉग्नाइज दैट दिस इज अ वुंड ऑफ एंट्री. लेकिन कांटेक्ट में जैसे अब डिस्कस जितना क्लोज होगा तो रेगेड बर्निंग सूट टैटूइंग कार्बन मोनोऑक्साइड दूध ये आपको सब कांटेक्ट में मिलता है और उतना ही ज्यादा जो है वो एंट्री वूंड साइज इंक्रीज होता है. अगर क्लोज कांटेक्ट पे हो तो उसमें आप देख सकते हैं कि 1 इंच या थोड़ा सा 1 इंच या इरेगुलर होल होता है, बर्निंग सूट कार्बन ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है. जितना डिस्टेंस इंक्रीज होता रहता है जितना होगा
उतना ही जो है वो वून ऑफ एंट्री जो है वो उसका साइज जो है वो डिक्रीज होता है, अनलेस अनटिल के बियॉन्ड 7 फीट की अगर या 12 या इसमें 12 यार्ड्स है तो उसमें आपको सिर्फ पैलेट अपेयरेंस नजर आती है। जब हम फायर आर्म राइफल फायर आर्म एंट्री वूंड की बात करें, राइफल फायर आर्म में क्लैशनकोव, हैंडगन्स, पिस्टल्स जो होते हैं जिनमें राइफलिंग फिनोमेना और होता है, वो राइफल फायर आर्म्स होते हैं। इसमें भी 4 डिस्टेंसेस होते हैं, कॉन्टैक्ट, क्लोज शॉट, नियर शॉट और डिस्टेंस शॉट होता है। इसमें डिफरेंस शॉट गन से होता है, इसमें एक बुलेट जो होता है वो बैरल से एग्जिट करता है, उसमें मल्टीपल पैलेट्स होते हैं। तो एक बुलेट से जो बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं, हम अकॉर्डिंग टू दैट उसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो कांटेक्ट में जो होगा वो अगर फोरहेड के ऊपर होता है तो उसकी अपीयरेंस जो होती है वो क्रूशियल होती है कि आपको स्टार शेप अपीयरेंस होती है। साइज ऑफ द एंट्री वुंड इज बिगर एज कंपेयर टू द एग्जिट वुंड एंड दिस इज बिगर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बुलेट। इसी तरह अगर एब्डोमेन में होगी, क्योंकि एब्डोमिनल टिश्यूज जो होता है वो बिकॉज ऑफ द फाइब्रस टिश्यू में इलास्टिसिटी ज्यादा होती है तो उसकी अपीयरेंस होती है कैविटेशन। तो ने डिस्कस की थी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में, यू कैन सी देयर इज muzzle impression. There's you can see there's muzzle impression, there's abrasion color, there's cherry red discoloration क्योंकि escape of gases surrounding में हुई है तो escape of gases dirt color होता है। तो सारी characteristic features इसी तरह क्लोज शॉट है, इसको फ्लेम से आपको जो एंटी वूंड में करेक्टर्स नजर आएंगे। डिस्टेंस अबाउट 5 to 8 सेंटीमीटर होता है। एंटी वूंड स्मॉल सर्कुलर होगा, इन्वर्टेड मार्जिन होते हैं। एंटी वूंड में मार्जिन इन्वर्टेड होते हैं, कंट्यूज एंड लेसरेटेड होते हैं। उसके अलावा एडजेसेंट स्किन में जो है वो आपको एविडेंस ग्रीस डर्ट मिलता है, इस पिक्चर में नजर आ रहा है। एब्रेशन कॉलर टैटूइंग मिलती है, बर्निंग नजर आ रहा है, चेरी रेड आते हैं। क्लोथिंग में बर्निंग के इफेक्ट्स क्योंकि क्लोथ बर्निंग होती है वो ज्यादा अप्रिशिएबल होते हैं। चेरी रेड डिस्कलरेशन की जो बात है, दिस इज द वूंड आ रहा है। उसके अलावा चेरी रेड डिस्कलरेशन है और अंदर जो एजेस के अराउंड दिस इज दी ग्रीस डर्ट, ये बुलेट्स वाइट। फिर है इंटरमीडिएट रेंज जो कि 60 तक इसका डिस्टेंस होता है। एंट्री वूंड जितना डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता रहता है उतना ही एंट्री वूंड का साइज जो है वो स्मॉल होता है और एग्जिट वूंड का साइज जो है वो इंक्रीज होता है। तो ऑपोजिट चलता है, अगर कांटेक्ट में होगा तो एंट्री वूंड का साइज इंक्रीज होता है और एग्जिट का जो होता है वो स्मॉल होता है। The entry wound will be circular in shape, same as the size of the bullet, with laceration, inverted margins, narrow zones of abrasion, and grease color, with no evidence of burning and singeing. As we have discussed, जितना सारे singeing, ये सारे जो effects जो characters होते हैं ये disappear होते हैं सिवाय zone of blackening will be present within 6 to 15 to 20 centimeter. Tattooing will be present. Handgun cartridge, सूद is absent beyond 30. अगर handgun किसी ने यूज किया तो बियॉन्ड 30 सेंटीमीटर पे जो है वो सूट डिसअपेयर होता है। अच्छा, इसमें डिपेंड करता है कि अगर हैंडगन है तो उसमें डिस्टेंस जो है वो ब्लैकनिंग का थोड़ा अलग है, और अगर हाई वेलोसिटी राइफल्स यूज की गई हैं तो उसमें डिस्टेंस अलग होता है। Range beyond 2 feet. Entry wound is usually circular in shape, smaller than the size of the bullet because of the elasticity, skin and associated with unusual zone of abraded collar, inverted margins and dirt collar. समटाइम्स होता ये है कि इंटरमीडिएट को हम लोग को क्लोज रेंज में भी लेते हैं, इसलिए कि जो where the suit and gunpowder is totally blocked by an interposed target may prove identical appearing. होता ये है कि अगर समटाइम्स अगर किसी का इंटरमीडिएट जोन होता है, अगर वो बुलेट
डायरेक्टली बॉडी पे स्ट्राइक नहीं कर रही लेकिन किसी करती है, तो वो उसका जो सर्कमस्टेंशियल ट्रेस एविडेंस होता है वो बॉडी में होगा, तो आपको फाइंडिंग अप्रिशिएट करना है कि कहीं इंटरमीडिएट आर्टिफैक्ट की ओरिजिनल फाइंडिंग है। अच्छा, एग्जिट वूंड जो होता है वो शॉर्ट गन और राइफल फायर आर्म का थोड़ा डिफरेंस होता है। यूजुअली होता ये है कि एग्जिट वूंड शॉर्ट गन में आपको मिलता नहीं है, इसलिए कि जो पैलेट्स होते हैं उनका जितना रेंज इंक्रीज होता रहता है उसमें पैलेट जो बॉडी में डिपॉजिट होते हैं, एग्जिट वूंड नहीं बनाते। लेकिन अगर कांटेक्ट में होते हैं तो हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल आर्म में हो तो वो एग्जिट वूंड बना सकते हैं, लेकिन अगर एब्डोमेन है या चेस्ट है तो उसको क्योंकि जैसे वो बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो उसके बाद बोन्स एंड टिश्यूज है वो उसकी स्पीड वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं और वो स्किन में ही जाके एग्जिट होने की वजह एम्बेड हो जाते हैं, तो एग्जिट वूंड बनता नहीं है यूजुअली। लेकिन राइफल फायर आर्म में जो होता है वो एग्जिट वूंड बनता है। एग्जिट वूंड जो राइफल फायर आर्म का जो होता है वो मार्जिन से होते हैं, उसके इवर्टेड होते हैं। साइज जैसे हमने बात किया कि एंट्री वूंड का साइज अगर कांटेक्ट में बिगर होता है तो एग्जिट में स्मॉलर होता है, और जितनी रेंज इंक्रीज होती है तो एंट्री वूंड का साइज स्मॉल होता है और एग्जिट का इंक्रीज करता है। इसी तरह इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अब इसमें एंट्री और एग्जिट इसको क्यों लेबल किया गया है। अब यू कैन सी दैट कि जो एंट्री वूंड में आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिल रहे हैं बर्निंग के, टैटूइंग के, सूट डिपोजिशन के, अब्रेजन कॉलर के, तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट वूंड है जिसकी वजह से साइज ऑफ द एंट्री वूंड जो है वो बिगर है और आपको साइज में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ही मिल रहा है। ये एंट्री यहाँ से सेम प्लेन में ये एग्जिट हो गया। अब एग्जिट में देख सकते हैं साइज ऑफ द वूंड इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू दी एंट्री वूंड और इवर्टेड मार्जिन। अच्छा, एग्जिट वूंड में आपको एब्रेजन कॉलर नहीं मिलता है। एग्जिट वूंड में देयर इज नो बुलेट स्वाइप, देयर इज नो टैटूइंग, देयर इज नो ब्लैकनिंग एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ फैब्रिकेटेड इंजरीज के, जिसमें अगर किसी की एब्डोमिनल एंट्री वूंड है और उसने कोई बेल्ट या कोई टाइट सी कोई यानी कि बॉडी के कांटेक्ट में है, तो जो बुलेट जब वो एग्जिट कर रही होती है तो उसको सपोर्ट मिलता है उस बेल्ट का एग्जिट होने के टाइम, तो वो क्या करती है उसी के आर्टिफैक्ट करके वो उस जगह पे एग्जिट होने पे वो एब्रेजन बना देती है। तो यूजुअली उसमें एब्रेजन नहीं होता नहीं है, लेकिन शोर्ड वूंड, एग्जिट वूंड में जो शोर्ड वूंड होते हैं यानी कि अगर उसको सपोर्ट मिल रहा होता है एग्जिट पे, कोई सपोर्टिंग गारमेंट्स आ रही है या फिर कोई क्लोथिंग आ रही है तो जिसकी वजह से वो एब्रेजन बना सकती है, वरना होता नहीं है। एज यू कैन सी एंट्रेंस मोड इसमें देखें स्मॉलर है, इसमें बिगर है, इन्वर्टेड मार्जिन है, इवर्टेड मार्जिन है, लेस ब्लीडिंग इन एंट्रेंस वूंड है, मोर ब्लीडिंग इन एग्जिट वूंड है, ब्लैकनिंग टैटूइंग आपको सब मिल रही है, इसमें ये सब चीजें इतनी अप्रिशिएबल नहीं है। एग्जिट वूंड में मोस्टली क्योंकि बॉडी से वो क्रॉस होकर गुजर रही होती है तो बॉडी के जो जो टिश्यू टैग्स होते हैं या मटेरियल होगा वो एग्जिट वूंड में आपको मिलता है। हाँ, इसी तरह स्कल में जो होता है वो एंट्री और एग्जिट का थोड़ा डिफरेंस होता है। उसमें जैसे हमने बिवेलिंग फिनोमेना पढ़ा था, स्कल में आपको बिवेलिंग फिनोमेना मिलता है इनर टेबल ऑफ द स्कल में। ये एंट्री वूंड है आउटर टेबल ऑफ द स्कल और ये एग्जिट है, एग्जिट वूंड है इन द इनर टेबल ऑफ, क्योंकि इसमें यहाँ पे इसको स्कल के अंदर कोई इसकी प्रोटेक्शन नहीं होती जिसकी वजह से बिवेलिंग होती है। इनर इसमें स्क्रेप ऑफ हो रहा होता है बोन बोन फ्रेगमेंट्स, तो ये आपको एक तो एंगल भी बता सकती है और आपको ये बताती है एंट्री कौन सी और एग्जिट कौन सी। अब है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। उसके लिए जरूरी ये है कि जो वही पोस्टमार्टम रूल एग्जामिनेशन के आपको क्या करनी चाहिए कि आपके पास रूल्स क्या है, कंसेंट है, केस की आइडेंटिफिकेशन है, प्रोटोकॉल्स, रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। उसके बाद जब एग्जामिन स्टार्ट करते हैं यू नीड टू, इन केस ऑफ फायर आर्म, इन केस ऑफ एनी अदर इंजरीज, यू नीड टू टेक फोटोग्राफ्स। व्हाई स्पेशली इन केस ऑफ फायर आर्म इंजरी, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई एंट्री ऑन एग्जिट कि एंट्री कितनी एंट्री है बॉडी में और कितने एग्जिट है। बार अगर बॉडी में एंट्री एक होती है और एग्जिट कोई नहीं होती, तो यू नीड टू फाइंड आउट कि वो बॉडी में ही लॉस्ट है या वो सेगमेंट कर गई है या उसने बॉडी के अंदर के जब सुपरफिशियल प्लेन में, डीप प्लेन में, तो आप उसके लिए फोटोग्राफ्स लिया करें। फिर एक्सरे भी मैंडेटरी। अब इस एक्सरे में देखिए, एक जो हमने बात की थी कि अगर एग्जिट वूंड होता नहीं है शॉर्ट गन का, लेकिन अगर हम हैंड की बात करें, आर्म की बात करें, तो उसमें देखें पूरी जो लॉन्ग बोन है इसकी स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर गई है और स्मॉल आपको पैलेट्स जो है वो वूंड नजर आ रहे हैं। उसके अलावा चेस्ट में आप वूंड देख सकते हैं, बुलेट सुपरफिशियली रखी हुई है, तो ये एक सोविनियर बुलेट्स भी होती है। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी बुलेट्स हैं।
इसके अलावा क्लोथिंग को प्रिजर्व करना होता है, आपको क्लोथिंग के हिसाब से एंट्री और एग्जिट को मार्क करना होता है। हो सकता है क्लोथिंग में आपको कोई एंट्री वूंड ना मिले और बॉडी पे हो, तो ये भी नीड टू आइडेंटिफाई आई वाज वेयरिंग क्लोथिंग और नॉट, हिस्ट्री के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही। उसके बाद है अगर पाउडर्ड ग्रेन्स, उसमें इंफ्रारेड फोटोग्राफी से आपको पता चल सकता है कि कौन से पाउडर्ड ग्रेन्स हैं, ब्लैक पाउडर है कि स्मोकलेस गन पाउडर है। मल्टीपल वूंड शुड बी नंबर्ड, जो बात की थी इंजरी सर्टिफिकेशन में, जो इंजरी सर्टिफिकेशन होती हैं उसमें आपको पिक्चर पे मार्क करना होता है कि कहाँ पे एंट्री हो रही है, कहाँ पे एग्जिट है, कितने वूंड्स आपने बॉडी पे एग्जामिन किए गए। उसके अलावा बुलेट को डिस्क्राइब करना होता है एंट्री और एग्जिट के हिसाब से, वही पॉइंट्स लिखने होते हैं। एंट्री पे आपने क्या क्या चीजें देखी हैं, एग्जिट पे आपने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिल रही है, ब्लीडिंग क्या मिली है, मार्जिन कैसे मिले हैं, एजेस कैसे मिले हैं, फायर आर्म के कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स है कि नहीं। उसके बाद आपने डायरेक्शन बतानी होती है। डायरेक्शन बताने का तरीका ये होता है, या तो आप हेड टू टो जाते हैं और उस हिसाब से बताते हैं, या मीडियल टू लेटरल डायरेक्शन होती हैं उस हिसाब से उसकी डायरेक्शन बताते हैं, या कोई फिक्स एनाटॉमिकल लैंडमार्क होता है अकॉर्डिंग टू दैट आप उसकी डायरेक्शन बताते हैं। उसके बाद है शेप। शेप ये स्टेलेट है, राउंड है, रेगुलर है। एब्रेजन कॉलर का क्या है, पाउडर मार्किंग के बारे में बताते हैं, विड्थ के बारे में बताते हैं, एब्रेजन कॉलर की विड्थ कितनी है या बुलेट स्वाइप की विड्थ कितनी है। एंड मोस्ट कॉमनली मजल इम्प्रिंट बताते हैं, जो अगर बताता है आपको ये क्लोज कॉन्टेक्ट था या फिर कॉन्टेक्ट वूंड था। अगर सर्जिकल ऑल्ट्रेशन हो गई, यानी कि सर्जरी हुई है उस केस की गन शॉट वूंड की, तो वो आपको अपनी इंजरी सर्टिफिकेशन में मेंशन करना जरूरी होता है, क्योंकि फिर आपके वूंड ट्रैक जो होता है वो ऑल्टर हो जाता है। ट्रैक को जो आपने खुद ही नहीं प्रोब करना होता, बल्कि सर्जिकल मैन्यूवर के थ्रू प्रोब करना होता है। उसके अलावा आपने गन शॉट रेजिड्यूज को डिटेक्ट करना होता है। गन शॉट रेजिड्यू डिटेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक विक्टिम से भी और असेलेंट से। असेलेंट में तो अगर उसने हैंड गन यूज किए तो उसकी गन पाउडर रेजिड्यू के हैंड्स पे होंगे, उसकी वेपन पे होंगे। तो उसको तरीका ये होता है कि या तो आपने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेजर करता है गन पाउडर एंटीमनी है जो अगर प्रेजेंट होगी, लेड एंटीमनी पार्टिकल्स, उसको स्कैन कर देता है। या दूसरा तरीका ये होता है कि आपने स्वॉब लेना होता है और उसको ट्रीट करना होता है ट्राइफेनाइल मिथाइल आर्सोनियम के साथ, और उसको फिर वो डिटेक्ट करता है। अगर वो कलर चेंज करता है ब्लू पे वो स्वॉब, तो वो आपको बताता है कि एंटीमनी है, लेड है या बेरियम या कॉपर है वो प्रेजेंट है। तो ये एक डिटेक्शन टेस्ट होता है गन शॉट रेजिड्यूज पे। उसके अलावा मैनर, अगर सिंगल एंट्री वुंड है, मल्टीपल एंट्री वुंड है तो आपको होमिसाइड की तरफ करता है। सिंगल है, एक्सीडेंटल है, सुइसाइडल होगा तो कॉमनली सुइसाइड जो होता है वो टेम्पल के ऊपर किया जाता है। हैंड की जो है वो पोजीशन से पता चलेगा, गन की प्रेजेंट एट द क्राइम सीन होगा। ये सब आपको मैनर ऑफ इंजरी के बारे में बताते हैं। फिर आपने प्रिजर्वेशन करनी होती है। प्रिजर्वेशन एक तो स्किन की प्रिजर्वेशन करते हैं, सराउंडिंग स्किन एंट्री वुंड्स को प्रिजर्व करते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट में बुलेट जो रिकवर की जाती हैं उन सब को प्रिजर्व करना होता है, क्योंकि वो आपको डिटेक्ट करेगी कि कौन सी वेपन यूज किया गया था, उसके लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। और फिर आपने बुलेट को डिस्क्राइब करना होता है, कैसी बुलेट थी, डिस्ट्रक्टिव बुलेट थी, इंटैक्ट बुलेट थी, फ्रेगमेंट्स में बुलेट थी, वो सब आपको बताना होता है। कितने कार्ट्रिज में कितनी बुलेट्स थी, कितनी फायर्ड हुई, कितने शेल्स मौजूद थे, क्लोथिंग के हिसाब से